بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پھر پوجا نے کہا، تمہارے اندازے درست ہیں، میں سپر ماسٹر کی نمائندگی کر رہی ہوں اور الپا کی تائید میں کہوں گی کہ یہ دعوت قبول کر لی جائے گی تو ہماری آپس کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ ہمارے سربراہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، دعوت قبول کی جائے گی تو میں مشروبہ کے دماغ میں آ کر بتا دوں گی۔ میرا خیال ہے اب مجھے جانا چاہیے، ہم پھر ملیں گے۔ شیتارا خاموش ہو گئی، مشروبہ کے دماغ میں بھی خاموشی چھا گئی۔ وہاں اب کسی کی سوچ کی لہریں نہیں تھیں۔ شیتارا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر پارس کو وہ تمام باتیں بتائیں۔ پارس نے کہا، MIM کے پہلی بار منظر عام پر آنے کے بعد ہی سے تمام دشمن اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ آخر یہ نئی تنظیم کہاں سے پیدا ہو گئی۔ شیتارا نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ ہم بھی تجسس میں مبتلا ہیں کہ یہ نئی تنظیم MIM اچانک کیسے پیدا ہو گئی۔ کوئی چیز اچانک پیدا نہیں ہوتی، بچہ بھی 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ شیتارا نے کہا، تم بچے کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں دے سکتے تھے؟ بھائی تم عورت ہو، میرے ساتھ رہتی ہو، میں نے سوچا اس مثال سے تمہاری کھوپڑی میں بات آ جائے گی۔ MIM جیسی مضبوط تنظیم جس کے مجاہدین ہر ملک ہر شہر میں ہیں، جو جدید طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے چند دنوں میں امریکہ، اسرائیل اور 2 اسلامی ممالک کو مشکلات میں ڈال دیا ہے، وہ کتنے دولت مند ہوں گے، کتنے عرصے سے پلاننگ کر رہے ہوں گے اور کیسی کیسی ٹریننگ حاصل کرتے رہے ہوں گے۔ اگر یہ اچانک پیدا ہوئے ہیں تو تم اچانک بچہ پیدا کر کے دکھاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے معاف کرو، تم سے سونیا سانی گھبرا جاتی ہے۔ میں کیا چیز ہوں؟ سیدھی طرح کام کی باتیں کرو۔ کچھ معلوم تو ہونا چاہیے کہ آخر یہ تنظیم کیا ہے۔ یہ طوطا چشم ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ ہم ہر برے وقت میں ان مجاہدین کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں ہم دونوں نے MIM کے سربراہ سے بھرپور تعاون کیا، اس کے لیے ایسی ویڈیو کیسٹ تیار کی جس کے ذریعے وہ اسرائیل کی طرف جھکنے والے اسلامی ممالک کو اور امریکہ کے عزائم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم کوئی صلہ نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ شکریہ کے 2 بول اگر بول دیتا، ہم سے 2 باتیں کر لیتا تو اس کا کیا بگڑ جاتا؟ مگر کام نکلتے ہی اس نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں۔ شیتارا نے کہا، واقعی یہ طوطا چشمی ہے۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں پوچھا، یہاں تک کہ جو ویڈیو کیسٹ اسے فائدہ پہنچانے والا تھا اسے بھی لینے نہیں آیا، اور نہ ہی کسی کے ذریعے اس نے کیسٹ کو ہم سے دوستانہ انداز میں مانگا۔ تو پھر مانتی ہو کہ وہ تمہاری طرح طوطا چشم ہے؟ ہاں مانتی ہوں۔ پھر وہ چونک کر اور اسے گھور کر بولی، کیا کہا تم نے؟ میں طوطا چشم ہوں؟ بھول گئی ہو، طوطے کو مؤنث بنا لو۔ میں تمہارے بال پکڑ کر نوچنا کھسوٹنا شروع کر دوں گی، تمہارے کپڑے پھاڑ ڈالوں گی۔ میری انسلٹ کر رہے ہو؟ میری بات پر ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کرو۔ اب تو تم ہماری ہو، تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر ماضی میں تم نے مجھ سے محبت بھی کی اور عداوت بھی۔ جب کام پڑا مجھے گلے لگا لیا، جب کام نکل گیا تو طوطی صاحبہ کی طرح آنکھیں پھیر لیں۔ شیتارا ناراضگی سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں کھینچ کر بولا، میں تانے نہیں دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ MIM کا سربراہ بھی تمہاری طرح ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر اعتماد کرتا ہے، اور جب ہم سے کام نکل جاتا ہے تو چپکے سے کہیں کھسک جاتا ہے۔ کیا تم مجھے حاصل کرنے کے بعد یہ پورا بھروسہ اور محبت کا یقین نہیں رکھتی تھی کہ میں تمہاری باہوں میں ہوں؟ ہاں، تم پورے اعتماد کے ساتھ میری باہوں میں رہتے آئے ہو۔ ٹھیک اسی طرح MIM کے سربراہ کو یقین اور اعتماد ہے کہ جو ویڈیو کیسٹ ہمارے پاس ہے وہ دراصل اس کے اپنے ہی گھر میں ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے ہماری ہر جگہ کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے۔ اتنا اعتماد ہونے کے باوجود وہ ہم سے ملتا کیوں نہیں ہے؟ مجھ پر اعتماد کرنے کے باوجود تم مجھ سے چھپتی کیوں رہتی تھی؟ میں کان پکڑتی ہوں، تم سے باتیں کر کے سر گھومنے لگتا ہے۔ کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہو؟ کیا صرف MIM کی باتیں نہیں کر سکتے؟ میرا باپ بھی اس تنظیم کے بارے میں بول نہیں سکتا، یقین نہ ہو تو پوچھ لو۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر مجھے مخاطب کیا۔ میں نے کہا، ہاں بیٹی بولو۔ پاپا، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے MIM کے سربراہ کے لیے دمشق میں کتنا کام کیا ہے۔ دشمنوں کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ ہم نے اس سربراہ کے لیے ویڈیو کیسٹ میں محفوظ رکھے ہیں، لیکن وہ عجیب انسان ہے، ثبوت حاصل کرنے کے لیے بھی ہم سے رابطہ قائم نہیں کر رہا۔ میں نے کہا، اس نئی تنظیم اور اس کے سربراہ کے متعلق میں صرف اتنا ہی اندازہ لگا سکا ہوں کہ وہ سربراہ ہمارے کاندھوں پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ طیارے کے اغوا سے پہلے ہی اسے ہماری طرف سے حاصل ہونے والی امداد کا علم ہو گیا تھا۔
शायद इस तंजीम में कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है, लेकिन तैयारे में हमारे टेलीपैथी जानने वालों ने और दमश्क में तुमने ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे बड़ा सहारा दिया। इसका नतीजा ये निकला कि तमाम दुश्मन ममालिक ये समझने लगे हैं कि MIM तंजीम में काफ़ी तादाद में टेलीपैथी जानने वाले हैं। शीतारा ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आवाज़ बदलकर यहूदी जासूसा मशरूबा के अंदर दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों को यही यकीन दिलाया है कि MIM में ख्याल ख्वानी करने वाले और वालियाँ हैं। मैंने हंसते हुए कहा, फिर तो सुपर मास्टर के और यहूदी तंजीम के ख्याल ख्वानी करने वाले इस हिसाब किताब में उलझे होंगे कि अब तक ट्रांसफार्मर मशीन से कितने टेलीपैथी जानने वाले पैदा हो चुके हैं, उनमें से कितने अगवा किए गए, कितने बागी हो गए और कितने ऐसे हैं जो अपनी मौत का ड्रामा खेल कर अब भी जिंदा हैं और एक नए रंग में सामने आ रहे हैं। पापा, ये तो दुश्मन ऐसा हिसाब किताब कर रहे होंगे, हमें भी तो उनके मुतल्लिक मालूम होना चाहिए। बेटी, वो MIM का सरबराह इतना पुरस्रार है कि सिर्फ आमना या जनाब तबरेज़ी साहब रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मगर क्यों पापा? मैंने जनाब तबरेज़ी साहब से पूछा था। उन्होंने जवाब दिया कि कोई शख्स नेक मकासद के लिए एक तंजीम बनाकर मंजर आम पर आया है और किसी ख़ास और माकूल वजह से ख़ुद को पोशीदा रख रहा है, तो हमें उसकी पोशीदगी का भरम रखना चाहिए। उसका जो भी तरीक़ाकार होगा वो हमारी टेलीपैथी का मतलूब रहेगा और हम उसके बारे में कुछ ना जानते हुए भी उसके काम आते रहेंगे, और तुम देख रही हो कि हम उसके काम आ रहे हैं। पापा, जनाब तबरेज़ी साहब हम सब के मोहतरम बुज़ुर्ग हैं, उनकी शान के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या वो जानबूझकर हमसे कोई हकीकत नहीं छुपा रहे हैं? नहीं, कभी ऐसा आइंदा ना सोचना। जनाब तबरेज़ी साहब जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह सच होता है। वो अल्लाह वाले हैं, उन्हें कुदरती तौर पर जिस काम को करने की आगही मिलती है वो करते हैं, वरना इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। पापा, आप तो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग नहीं हैं, सिर्फ मुसलमान हैं। सारे ज़माने में आपकी जहानत का चर्चा है, कोई दुश्मन पुरस्रार बनकर आपसे छुप नहीं सकता, फिर आप उसे बेनकाब क्यों नहीं करते हैं? बस बेटी, तुमने मेरी बहुत तारीफ़ें कर डालीं। तुम भूल रही हो कि मैं दुश्मनों को बेनकाब करता हूँ, जबकि वो MIM का सरबराह कोई दुश्मन नहीं है। अलबत्ता मेरे दिल में भी ये तजस्सुस ज़रूर है कि आखिर वो कौन है। तो फिर इस तजस्सुस को ख़त्म करने के लिए ही कुछ करें। कुछ करने के लिए ही तुम्हें इस तुम्हारे शैतान के साथ दमश्क भेजा है। मैं अपनी जगह मसरूफ़ रहूँगा, तुम अपने शैतान से रुजू करो। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर पारस को देखने लगी। उसने पूछा, इस तरह क्यों देख रही हो? वो बोली, शैतान को इसी तरह देखा जाता है। अभी पापा कह रहे थे कि MIM के सरबराह को तुम्हारे जैसा शैतान ही बेनकाब कर सकता है। ये बात किसी मर्द की समझ में नहीं आती कि कोई बात छुपी रहे तो औरतों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है। ऐ नेक बख्त, वो कोई दुश्मन नहीं है, उसके पोशीदा रहने की कोई वजह होगी। देखो, अभी हम एक इस्लामी मुल्क में हैं, यहाँ कितनी ही हसीनाएं चेहरों पर नकाब डालकर घूमती हैं। क्या तुम अपने इस मर्द को इजाज़त दोगी कि मैं किसी हसीना के रुखे रोशन से नकाब हटाऊं? पारस, तुम बातें बनाने का फ़न जानते हो। फॉर गॉड सेक, सिर्फ उस सरबराह की बात करो। तुम सरबराह के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारी नीयत तो ठीक है, पटड़ी बदलने का इरादा है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोली, पहले मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, फिर अपने कान पकड़े, अब कहो तो तुम्हारे पाँव पकड़ लूँ। मैं तुम्हें पापा की कसम देती हूँ, प्लीज़ संजीदा हो जाओ। चलो, संजीदगी से पूछ रहा हूँ, दुनिया वालों के सामने उसे बेनकाब करके तुम क्या हासिल करोगी? मैं कब कहती हूँ कि सारी दुनिया के सामने उसे बेनकाब करो? फिर क्या चाहती हो? सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम, तुम और पापा मालूम कर लें कि वो कौन है, फिर उसे बदस्तूर रूपोश रहने दें। अच्छी बात है, सिर्फ हम मालूम करेंगे और उसकी रूपोशी को बरकरार रखेंगे। वो खुश होकर उसके गले लग गई। वो बोला, खतरा है, वो तुम्हारे गले पड़ जाएगा तो क्या होगा? तुम फिर बहक रहे हो। अपनी संजीदगी बरकरार रखो और बताओ, हम उस सरबराह तक कैसे पहुंचेंगे? उसकी दावत में जाएंगे? ये तुम फिर बकवास शुरू करने लगे हो। ये बकवास नहीं है, सच कह रहा हूँ। अभी मशरूबा के अंदर जाओ और उससे कहो कि MIM के सरबराह ने उनकी दावत कबूल कर ली है, वो इसराइल आने को तैयार है, दावत का दिन मुकर्रर कर लो। वो घूर कर बोली, तुम्हें पता है क्या बकवास कर रहे हो? दावत उस सरबराह को दी जा रही है और तुम महज दावत कबूल नहीं करवा रहे हो, बल्कि दावत का दिन भी मुकर्रर करने को कह रहे हो। क्या वो सरबराह जिसे हम नहीं जानते वो दावत का दिन कबूल कर लेगा? पारस ने पूछा, जिस सरबराह को हम नहीं जानते
क्या उसे दावत देने वाले यहूदी जानते हैं? उसे तो कोई भी नहीं जानता। तो फिर सबसे पहले तुम जान लो कि वो मुफ्त की दावत के मज़े उड़ाने वाला सरबराह तुम्हारे सामने है और तुम उसके गले लगी हुई हो। वो एकदम से अलग होकर हैरानी से उसे देखकर बोली, तुम सरबराह बनकर जाओगे? मुझे तो पहले ही दिन जाना चाहिए था। उस कमबख्त ढांचे ने एक हसीना को भी हाथ नहीं लगाया। किसी हसीना को देखकर दिल पिघलता है। वो सर से पांव तक पिघल कर उस हाकिम महल में नाबूद हो गया। जब तुम जिद कर रही हो तो कोई बात नहीं, मैं चांस ले लूंगा। वो गिरेबान पकड़कर बोली, शर्म नहीं आती? वहां अय्याशी के लिए जाओगे? अभी तुम खुद ही जिद कर रही थी कि सरबराह को बेनकाब किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहां सरबराह बनकर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा तो उसकी असलियत मालूम नहीं कर सकूंगा। चूल्हे में गई असलियत मुझे नहीं मालूम करना कि वो कौन है। अब इसलिए नहीं मालूम करना चाहती हो कि वहां मेरी खिदमत में पेश रहने वाली यहूदी हसीनाएं होंगी? इस बात को मिट्टी में डालो, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि उस सरबराह को बेनकाब ना किया जाए? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे किसी को बेनकाब नहीं करना है। पारस ने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाकर कहा, या खुदा, हर मर्द को इतनी अकल दे कि वो अपनी औरत को इसी तरह जिद और हट धर्मी से बाज रखा करे। ये औरत 1 घंटे से मेरा दिमाग खा रही थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी दुआ सुन रही थी। फिर बोली, अच्छा तो तुम मुझे उल्लू बना रहे थे? मैं ऐसा उल्लू तो नहीं हूं कि औरत के सामने उसे उल्लू बनाने की बात करूं। मैं तो औरत की फितरत बयान कर रहा हूं। अभी 1 घंटे से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, अब खत्म हो गया। मैंने इलाज किया है। उसने उसे घूर कर देखा, फिर उसे गुस्सा दिखाती हुई उससे दूर हो गई। वहां से उठकर दूसरे बेडरूम में चली गई। पारस थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर उठ के बेडरूम के दरवाजे पर आकर बोला, तुमने गुस्सा दिखाने के बावजूद ये दरवाज़ा खुला रखा है ताकि मैं तुम्हें मनाने आऊं? आखिर तुम औरतें इतने नखरे क्यों दिखाती हो? मैं नखरे दिखाने वालियों में से नहीं हूं और ना ही ये चाहती हूं कि तुम मुझे मनाने आओ। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद करके अंदर से चिटकनी लगा ली। पारस मुस्कुराता हुआ टीवी के पास आया, उसे ऊंची आवाज़ में ऑन कर दिया, फिर सोफे पर बैठकर मोबाइल फ़ोन का नंबर डायल किया। बाबा साहब के इदारे से राबता कायम किया, कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, पापा से कहो मेरे पास आएं, दैट्स ऑल। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे बाबा साहब के इदारे के खुफिया राबते सिस्टम से इतला दे दी गई। मैंने पारस के पास आकर उससे पूछा, क्या बात है बेटे? वो मुझे अपने एक मंसूबे की तफसील बताने लगा। मैं सुनता रहा और तायद करता रहा। फिर उसने कहा, शीतारा मेरे सरबराह बनने के सिलसिले में रुकावट बनेगी। आप इस मामले को हैंडल करें। मैं सुबह होने तक दमश्क छोड़ दूंगा। आप किसी दूसरे शहर के लिए किसी फ्लाइट में मेरी सीट रिजर्व करवा दें और आइंदा राबता रखें। वो शीतारा के साथ एक खूबसूरत से आरास्ता बंगले में क़याम कर रहा था। वहाँ एक फ़ोन ड्राइंग रूम में और एक बेडरूम में था। पारस ने मुझे बेडरूम का फ़ोन नंबर बताया। मैंने कहा, इस शहर में किसी को भी फ़ोन करो, मैं उसे अपना आलाकार बना लूँगा। उसने डायरेक्टरी के एक सफ़े से एक फ़ोन नंबर देखा, फिर वो नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी शख्स की आवाज़ सुनाई दी। पारस ने मेरे कहने पर रिसीवर रख दिया। मैंने उस शख्स के दिमाग पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया, उसे बिल्कुल गायब दिमाग कर दिया। फिर उससे उस बेडरूम का नंबर डायल कराया जहां शीतारा थी। उस बेडरूम के फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो रिसीवर उठाकर आवाज़ बदल कर बोली, हेलो। मैंने भी अपने आलाकार की आवाज़ बदल कर कहा, हेलो, मैं वही हूँ जिसे दोस्त और दुश्मन बेनकाब करना चाहते हैं। ये सुनते ही वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई, फिर अनजान बनकर बोली, तुम कौन हो? अपने बारे में कुछ बताओ। मैं MIM का सरबराह बोल रहा हूँ। उसूलन मुझे तुम्हारा और तुम्हारे साथी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुम दोनों ने हाकिम महल में मेरा बड़ा साथ दिया था, लेकिन मैं जिन्हें अपना समझता हूँ उनका शुक्रिया अदा नहीं करता, चुपचाप दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। वो बोली, मुझे आपसे बातें करके खुशी हो रही है। अब भी हमारे लायक कोई खिदमत हो तो हम हाजिर हैं। मैंने एक जहमत देने के लिए फ़ोन किया है। तुम मशरूबा के ज़रिए यहूदियों को ये पैगाम दे दो कि 2 दिन बाद यानी 12 तारीख को मैं उनकी दावत कबूल कर रहा हूँ और इसी तारीख को किसी फ़्लाइट से तिल अबीब पहुँच रहा हूँ। मैं आपका पैगाम अभी पहुँचाऊँगी, लेकिन आप मेरी एक हैरानी दूर करें। आपको यहूदियों की तरफ से दी जाने वाली दावत का इल्म कैसे हुआ, जबकि ये बातें टेलीपैथी के ज़रिए हो रही थीं? हमारे कुछ खुफिया ज़राए हैं जिनसे मुझे फ़ौरन ख़बरें मौसूल होती रहती हैं। ये खबर ज़रा देर से मिली। बाय द वे, दावत कबूल करने की एक शर्त ये पेश करो कि कल सुबह ही से 12 तारीख तक तमाम दुनिया में ये खबर नशर होती रहेगी कि MIM का सरबराह मुज़ाकरात के लिए तिल अबीब आ रहा है।
इस बार वो हड्डियों का ढांचा नहीं होगा बल्कि गोश्त पोस्त का मुकम्मल इंसान होगा। मैं आपकी एक एक बात वहां तक पहुंचा दूंगी। क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आप हम जैसे मुखलिस साथियों से क्यों रूपोश रहते हैं? क्या अपनी कोई मजबूरी या मसलहत बताएंगे? खुदा ना करे कि मेरे साथ कोई मजबूरी हो। हाँ, एक मसलहत के सबब रूपोश रहा, अब वो मसलहत भी नहीं रही। इस दावत में मेरी कोई डमी नहीं जाएगी, मैं खुद वहां आ जाऊंगा। तुम जहां भी रहोगी मुझे वहां टीवी स्क्रीन पर देख सकोगी। क्या आपको अंदेशा नहीं है कि वो आपको किसी तरह नुकसान पहुंचाएंगे? लोग अपने बचाव के लिए अपने साथ हथियार ले जाते हैं। मैं अपने साथ दुश्मनों की बड़ी कमजोरियां लेकर चलता हूं। किसी भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली मेरी तरफ नहीं आ सकेगी। जब आप 2 रोज बाद जाहिर होने वाले हैं तो क्या आज हमसे मुलाकात नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता, मगर मेरा हेलीकॉप्टर परवाज के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे फ़ौरन यहाँ से जाना होगा। मैं मिलूँगा, आज ना सही फिर किसी दिन और सही। खुदा हाफिज। मैंने अपने आलाए कार से फ़ोन बंद करा के रिसीवर रखवा दिया। उधर शीतारा ने मुस्कुराकर रिसीवर रखा। मुस्कुराने की वजह यह थी कि अब पारस की प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। अब वो सरबराह बनकर यहूदियों की दावत कबूल करके इसराइल नहीं जा सकेगा। अब पारस की प्लानिंग का मजाक उड़ाना चाहिए। वो पलंग से उतरकर बंद दरवाजे के पास आई, फिर उसे खोलकर फातिहाना अंदाज में उस कमरे को देखा। टीवी ऊंची आवाज में ऑन था, मगर टीवी देखने वाला कोई नहीं था। उसने उसे ऑफ कर दिया, फिर आवाज दी, ए दिल फेंक आशिक, तुम कहाँ हो? बेचारी इसराइल की यहूदी हसीनाएं तुम्हारा इंतजार कर रही थीं, मगर अफसोस तुम्हारे लिए ये बुरी खबर है कि अब वो हसीनाएं MIM के असली सरबराह को लुभाने वाली हैं। क्या तुम सुन रहे हो? वो बाथरूम के दरवाजे पर आकर दस्तक देकर बोली, क्या हुजूर मकार साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं? उसने दरवाजे के हैंडल को जरा सा घुमाया तो वो खुल गया। बाथरूम खाली था। वो सोच में पड़ गई, फिर बोली, मुझे खामखा परेशान ना करो, मैं अभी तक तुमसे नाराज हूँ, दोस्ती करने नहीं आई हूँ। सिर्फ ये खुशखबरी सुनाकर तुम्हारे दिल पर बिजली गिराना चाहती हूँ कि असली सरबराह ने अभी मुझसे राबता किया था। अब इसराइल में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। वो बोलती हुई बंगले के दूसरे हिस्से से गुजरने लगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की। उसके दिमाग में पहुंचते ही कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, सांस ना रोकना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरने आई हूँ। पहले ये बताओ कि घर से बाहर जाकर कहाँ भटक रहे हो? जब घर की औरत बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले तो मर्द बाहर भटकने लगता है। अब मैं सुबह तक आवारा गर्दी करूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। तुम मर्दों को तो भटकने का बहाना चाहिए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, वापस आ जाओ। तुम वापस बुला रही हो और मैं सोच रहा हूँ कि सरबराह बनकर इसराइल जाने के लिए कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। वो हंसकर बोली, जनाब को मालूम होना चाहिए कि असली सरबराह वहाँ जा रहा है। क्यों बेपरकी उड़ा रही हो? मैं तुम्हें जितना चाहती हूँ उसी चाहत की कसम खाकर कहती हूँ, अभी उस असली सरबराह ने मुझसे राबता किया था। तुम इतनी बड़ी कसम खा रही हो तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। क्या वाकई उसने यहूदियों की दावत कबूल कर ली है? हाँ, अभी मैं मशरूबा के जरिए ये पैगाम इसराइली हुकाम तक पहुँचाऊँगी कि वो 2 रोज़ बाद 12 तारीख को तिल अबीब पहुँच रहा है, और इस बार ढांचा बनकर नहीं बल्कि अपनी असली शख्सियत के साथ वहाँ जाएगा। क्या उसने फ़ोन पर राबता किया था? हाँ, वो हम सब के मुतालिक मालूमात रखता है। पता नहीं कितने वसी ज़राए का मालिक है। उसे ये भी मालूम हो गया था कि यहाँ यहूदियों ने उसे अपने मुल्क में आने की दावत दी है। क्या तुम सच कह रही हो कि उसने तुमसे फ़ोन पर राबता किया था? ताज्जुब है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि तुमने मुझे बाहर करके दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। हो सकता है कि तुमने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुलाया हो। औरत ज़ात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हंसने लगी, फिर बोली, तुमने ठीक ही समझा है। ये मेरा दूसरा आशिक अभी यहाँ बैठा हुआ है, फौरन रकीब बनकर चले आओ। जब आ ही गया है तो बेचारे को मायूस ना करो, मुझे रकीब ना बनाओ, मैं किसी दूसरी रकीबा के पास जा रहा हूँ। ये कहकर उसने सांस रोक ली। वो उसे हसद और जलापे में मुब्तला करना चाहती थी। रकीबा की बात पर खुद ही जल भुन गई। बार बार उसके दिमाग में जाने की कोशिश करती रही और वो सांस रोकता रहा। आखिर वो थक हार कर बिस्तर पर आकर लेट गई। फिर मशरूबा के पास जाकर उस MIM के सरबराह का पैगाम पहुंचाने लगी। उधर वाशिंगटन में सुपर मास्टर और फौज के चंद आला अफसरान हेडक्वार्टर के एक कमरे में बैठे MIM के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। पूजा ने उन्हें बताया कि वो मशरूबा के दिमाग में थी। उस वक्त MIM की एक ख्याल ख्वानी करने वाली ने बताया था कि ट्रांसफार्मर मशीन से पैदा होने वालों में
जितने लोगों ने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था, उनमें से बागी होने वालों और अगवा होने वालों ने और अपनी मौत का ढोंग रचाने वालों ने वो नई तंजीम बनाई है। यही बात यहूदी खुफिया तंजीम के तमाम एडम ब्रदर्स के दरमियान बैठी हुई अल्पा कह रही थी। पूजा की तरह अल्पा भी शीतारा को MIM की कोई ख्याल ख्वानी करने वाली ऐसी ही औरत समझ रही थी जो ट्रांसफॉर्मर मशीन से टेलीपैथी सीखने के बाद अगवा होकर या बागी होकर नई तंजीम के लिए काम कर रही थी। यहूदी खुफिया तंजीम के एडम ब्रदर्स तिल अबीब में थे और सुपर मास्टर चंद आला फौजी अफसरान के साथ वाशिंगटन के हेडक्वार्टर में था। दोनों ममालिक के अकाबरीन के सामने सबसे पहली अहमियत इस बात की थी कि पहले मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल करने वालों की तादाद मालूम की जाए। जब पहली बार ट्रांसफॉर्मर मशीन तैयार हुई और उस मशीन से जिस पहले शख्स ने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया, उस शख्स से लेकर अब तक यानी पाशा और पूजा तक कितनी तादाद में औरतों और मर्दों ने यह इल्म हासिल किया है? सुपर मास्टर ने कहा, ऐसे अफराद का एक मुकम्मल रजिस्टर मौजूद है। उस रिकॉर्ड में वो टेलीपैथी जानने वाले और वालियां दर्ज हैं जो अगवा किए गए और अगवा किए जाने के बाद उन्हें तनवीमी अमल के जरिए ब्रेन वॉश करके अपना मामूल और ताबेदार बनाया गया। एक अफसर ने कहा, और हमारी मशीन से पैदा होने वालों की मालूमात की जो इत्तला हमें मिलती रही उसमें कितनी सदाकत है। मसलन जॉन लेम्बोडा के दौर में एक लड़की राइमा जॉन थी जो अगवा होने के बाद इसराइल पहुंचा दी गई थी। बाद में हमें इत्तला दी गई कि राइमा जॉन मर चुकी है। क्या हमें यहूदियों की इस बात पर यकीन करना चाहिए? दूसरे आला अफसर ने कहा, हरगिज़ नहीं। अगरचे इसराइल हमारा दस्ते रास्त है, लेकिन इसके बावजूद इसराइली यहूदियों ने हमारे अच्छे खासे टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया। अल्पा, टेरी हार्ट और दाऊद मंडोला कट्टर यहूदी हैं। उन्होंने अपने जैसे टेलीपैथी जानने वाले और ना जाने कितने अफराद को छुपा रखा है। हमारे एक जासूस की इत्तला के मुताबिक टेलीपैथी जानने वाला टैलबॉट भी वही है। सुपर मास्टर ने कहा, जिस तरह हम ये कहते हैं कि MIM की नई तंजीम में गुमशुदा टेलीपैथी जानने वाले हैं, उसी तरह हमारे तमाम अगवाशुदा टेलीपैथी जानने वालों ने और बागी यहूदियों ने मिलकर इसराइल में खुफिया यहूदी तंजीम बनाई है। हमें मुसलमान दुश्मनों का हिसाब करते वक्त यहूदी दोस्तों से पहुंचने वाले नुकसानात का भी हिसाब करना चाहिए। एक आला ऑफिसर ने सुपर मास्टर से कहा, आप फिलहाल यहूदियों की चालबाजियों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि यही यहूदी मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने में हमारे बहुत काम आ रहे हैं। एक और अफसर ने कहा, हमें फिल वक्त ये हिसाब करना चाहिए कि अब तक हमारे कितने टेलीपैथी जानने वाले लापता हो गए हैं। दमश्क में हड्डियों के उस ढांचे के साथ जो मुज़ाकरात हुए, तब से MIM की ख्याल ख्वानी करने वालियां अपनी सरगर्मी दिखा रही हैं और जिस अंदाज से वो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, उससे उनकी जहानत और चलाकी का पता चलता है। सुपर मास्टर ने कहा, हम मरीना डी फॉन्जा को नहीं भुला सकते। सबसे ज्यादा मक्कार और हाजिर दिमाग वही थी। वही हमसे बगावत करके पारस की आगोश में चली गई थी, फिर उसे भी धोखा देकर शीतारा के साथ रही। फिर परगोला से उसका कुछ ताल्लुक जाहिर हुआ। आजकल वो लापता है, जैसे मर चुकी हो, मगर अब हम यकीन नहीं करेंगे, वो जिंदा है और ज़रूर इस नई तंजीम में है। जैसा कि मैं बहुत पहले ये बयान कर चुका हूँ कि मरीना ने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई थीं। आखिरकार मुझसे इल्तजा की थी कि मैं एक बार उस पर भरोसा करके उसे पनाह दूँ। तब मैंने उसे मशवरा दिया कि वो शादी करके नहायत खामोशी और गुमनामी से एक अच्छी घरेलू ज़िंदगी गुजारे। तिल अबीब में बाबा साहब के इदारे के एक जासूस टॉम मॉरिस से उसने शादी कर ली और अब तक खामोशी और गुमनामी से इज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही है। ख्याल ख्वानी उसी वक्त करती है जब मैं उससे राबता करता हूँ। सुपर मास्टर वगैरह ये राय कायम कर रहे थे कि मरीना ने इस्लाम कबूल कर लिया है या फिर किसी मुसलमान तनवीमी अमल जानने वाले ने उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया है और अब वो MIM के लिए काम कर रही है। फिर एक और टेलीपैथी जानने वाली शल्पा थी। उसके मुतल्लिक किसी का ख्याल था कि वो मर चुकी है, कोई उसकी मौत की और कोई उसकी ज़िंदगी का यकीन नहीं कर रहा था। वाशिंगटन और तिल अबीब में ये इल्म जानने वाली औरतों और मर्दों का हिसाब हो रहा था, लेकिन तस्दीक नहीं हो रही थी कि किसके अगवा होने के, किसके बागी होने के, किसके ब्रेन वॉश होने के और किसकी मौत के बारे में हतमी राय क्या कायम की जाए। वो तमाम टेलीपैथी जानने वालों के नामों की फहरिस्त रखते थे, लेकिन ये दावे से नहीं कह सकते थे कि जितने अफराद फहरिस्त में हैं उनमें से कितने अफराद इस दुनिया में रह गए हैं। चूँकि ये यकीनी हिसाब नहीं मिल रहा था,
इसलिए अब सारे ही दुश्मन ये यकीन कर रहे थे कि वही सब भटके हुए ख्याल ख्वानी करने वाले और वालियां इस नई तंजीम MIM में शामिल हो गए हैं। और चूंकि वो ख्याल ख्वानी करने वालियां और वाले ईसाई या यहूदी थे, इसलिए उन्हें बड़ी चालाकी से ट्रैप करके उन पर तनवीमी अमल करने के बाद उन्हें मुसलमानों का वफादार बना दिया गया है। सुपरमास्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि जैसे हम जो बो रहे हैं वो काट रहे हैं। हम रफ्ता रफ्ता मुसलमानों को बड़े ही गैर शऊरी तौर पर मज़हब से हटा रहे हैं और ये MIM वाले हमारे ही ईसाइयों और यहूदी टेलीपैथी जानने वालों को मुसलमान बनाते जा रहे हैं। ये तंजीम हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक हो गई है। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सुपरमास्टर ने कहा, कम इन। दरवाज़ा खुला तो शतरंज का चैंपियन माइक हरारे नजर आया। सुपरमास्टर और 3 फौजी अफसरान ने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया, फिर उसे एक सोफे पर बैठने के लिए कहा। एक अफसर ने पूछा, क्या तुम खुद को पूरी तरह सेहतमंद समझते हो? माइक हरारे ने कहा, जी हाँ, आप सब ने डॉक्टरों की रिपोर्ट देखी है और मैं बजाते खुद तंदुरुस्ती और तवानाई महसूस कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आपने मुझे किसी अहम मकसद के लिए बुलाया है। हाँ, एक नई तंजीम MIM यानी मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन के नाम से मंजर आम पर आई है। तुमने अलालत के दौरान टीवी के जरिए उस तंजीम के मुतालिक बहुत कुछ जान लिया होगा। जी हाँ, जब से दिमागी तवानाई बहाल हुई है मैं ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखता रहा या फिर ख्याल ख्वानी में वक्त गुजारता रहा। मुझे 3Ds की मौत का बहुत अफसोस है। मिस्टर हरारे, तुमने हमारे सामने एक दिन डी क्रूसो को समझाया था कि सियाचिन ग्लेशियर के मामले में पारस से उसका साबका पड़ेगा, उसे बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, लेकिन उसने तुम्हारे मशवरे पर अमल नहीं किया और उनके जाल में फंस गया। माइक हरारे ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं कि टेलीपैथी जानने वाला डी क्रूसो हमारे हाथ से निकल गया, बल्कि यह नुकसान भी हुआ कि पारस के साथ ऐना और आदिल ने अक्स मुंतकिल करने वाले आलात की इतनी पब्लिसिटी कर दी कि अब पाकिस्तान और भारत की आर्मी बहुत ज़्यादा मोहतात हो गई है। हम इस मिशन में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। सुपरमास्टर ने कहा, हम सियासी, इक्तसादी और माली इमदाद के ज़रिए मुसलमान अकाबरीन को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। कई इस्लामी ममालिक में कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, लेकिन टेलीपैथी के ज़रिए हम कई जगह शिकस्त खा चुके हैं। ऐसे में ये नई तंजीम MIM हमारे आसाब पर सवार हो गई है। हरारे ने कहा, मेरा ख्याल है आप मुझे MIM को खरीदने और उसके सरबराह को बेनकाब करने और उसके टेलीपैथी जानने वालों के सिलसिले में मालूमात हासिल करने का हुक्म देंगे। लफ्ज़ हुक्म इस्तेमाल ना करो, हम तुम्हें बराबर का दर्जा देते हैं। तुम्हारे जैसे शातिर और हाजिर दिमाग को हम मातहत नहीं समझते। तुम MIM के मुतालिक कोई राय रखते हो तो खुलकर बात करो। जब मैं शतरंज की चाल चलता हूँ तो मुकाबिल की तवज्जो एक मरकज़ से हटाने के लिए एक चाल ऐसी चल देता हूँ जिससे मुझे कुछ ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, लेकिन मैं मुकाबिल को भटकाने में कामयाब हो जाता हूँ। सब उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो बोला, हमारा जो मुकाबिल है वो हमें इसी तरह भटका रहा है। ये नई MIM तंजीम हमें भटकाने के लिए आई है। मैं सवाल करता हूँ कि इस नई तंजीम से आपको क्या नुकसान पहुँच रहा है? एक आला अफसर ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? उस तंजीम ने PLO और इसराइली मुआहदे की धज्जियां बखेर दीं। उर्दन और इसराइल से होने वाला मुआहदा मुलतवी हो गया है। मुल्क शाम भी मुआहदे के सिलसिले में MIM से खौफजदा है। माइक हरारे ने कहा, अब आप इसका दूसरा पहलू देखें कि कई इस्लामी ममालिक के अकाबरीन ज़हनी तौर पर इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। सिर्फ अवाम के बागी होने का अंदेशा है या फिर MIM की धौंस है। हरारे ने एक ज़रा तवक्कुफ से कहा, असल मुआहदा 2 पार्टियों या 2 ममालिक के दरमियान ज़हन से होता है। वो ज़हनी मुआहदा हम अमरीकी और इसराइलियों के हक़ में है। तहरीरी मुआहदा आज ना सही कुछ अरसे बाद हो जाएगा। MIM जैसे सोडा वाटर गैस की तरह उछलकर सामने आई है, वैसे झाग की तरह बैठ जाएगी। सुपरमास्टर ने तायद में सर हिलाकर कहा, वाकई इसराइल और कई इस्लामी ममालिक के दरमियान ज़हनी समझौता हो चुका है। नई तंजीम को फरहाद अली तैमूर की तरह टेलीपैथी का खेल खेलने दो। तुम ये बताओ मिस्टर हरारे कि हमें क्या करना है? वो बोला, इस खेल में हमें भटकाया जा रहा है, लिहाजा पहले भटकने से बचना चाहिए। ताजिकिस्तान में 3Ds मर गए, वहाँ फरहाद ने मैदान साफ कर दिया, मगर आप उस मैदान को भूलकर MIM में उलझ गए। टेलीपैथी जानने वाला ज़बरदस्त फाइटर डी क्रूसो हाथ से निकल गया और हमारा अक्स मुंतकिल करने का हरबा नाकाम हो गया। लेकिन आप सियाचिन ग्लेशियर्स के महाज पर तवज्जो कम करके नई तंजीम के सरबराह को बेनकाब करने की फिक्र में लगे हैं। अगर हम और आप इसी तरह मैदान छोड़ते रहे तो भारत हमसे मायूस होकर
चीन की तरफ पूरी तरह झुकता चला जाएगा। इस तरह चीन सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने में और वहां अपना फौजी अड्डा बनाने में कामयाब हो जाएगा। सुपरमास्टर ने कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो, ये तमाम मसाइल हमारे लिए अहम और हल तलब हैं, लेकिन इन दिनों हमारी तवज्जो वाकई नई तंजीम की तरफ अटक कर रह गई है। एक फौजी अफसर ने कहा, सियाचिन की तरह ताजिकिस्तान भी हमारे लिए अहम है। अगर हमने ताजिकिस्तान की मशरकी सरहद की तरफ अपनी पोजीशन मजबूत ना की तो चीन शुमाली एशिया से पेश कदमी करता हुआ यूरोप तक पहुंचेगा। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।